السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کرن نے۔ ناول کا نام ہے ساری بھول ہماری تھی، مصنفہ ہے راحت جبی، قسط نمبر 2۔ نہیں نہیں، اپنے سیاپے پورے کر لے، میرا کیا ہے۔ کسی نے جوتے پر پالش پھیرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ گھر میں رکھی کوڑے کی ٹوکری جتنی اہمیت نہیں۔ تایا ظفر کو ویسے بھی بہت شوق تھا ایسے کسی بھی موقع پر گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھلانے کا۔ فاطمہ سب کام چھوڑ کر بھاگی۔ ہاتھ میں چمکتے دمکتے جوتے تھے۔ دیکھیں نا ابا، میں نے تو صبح سے آپ کے جوتے چمکا کر رکھے ہیں، تو چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے گھورا۔ چھپائے نہیں، وہ تو ادھر۔ فاطمہ میں نئی بنیان لایا تھا۔ نعمان کی آواز پر وہ ادھر لپکی۔ ہاں، پہلے ان کو دلہا بنا دو، جتنا کماتا ہے اس سے دگنی آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگے۔ گھر میں عجیب سی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ صوبان اوپر سے تیار ہو کر خوشبو میں بسا نیچے آیا۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا ہیرو لگتا ہے۔ آج تو لوگ جل مریں گے، ہے کوئی اس جیسا؟ حمیدہ سارے کام چھوڑ کر اس کی بلائیں لینے لگی۔ نعمان نے مڑ کر صوبان کو دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں اماں، یہ تو ٹھہرا تیرا افسر بیٹا اسی کی بلائیں لے گی۔ نہیں، تو بھی کسی سے کم نہیں، ماں نے تسلی دی، ساتھ ہی پکارا، مریم او مریم، جلدی سے مرچیں ملا، اپنے بیٹوں سے واروں۔ اماں، میں عریشہ سے جوتے لینے جا رہی ہوں، مریم نے جواب دیا اور عریشہ کی طرف آ گئی جو میک اپ کر رہی تھی۔ مریم ٹھٹک گئی۔ میرون اور گلابی امتزاج کی جدید سٹائلش سوٹ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ تم نے یہ سوٹ کب لیا؟ امی کے ساتھ جا کر لائی تھی، عریشہ مڑ کر مسکرائی۔ شادی کے لیے؟ ہاں، مجھے دکھایا ہی نہیں، اس کے لہجے میں حسد ہی حسد تھا۔ ابھی کل ہی تو لائے ہیں، تم اس وقت مہندی لگوانے گئی تھیں۔ عریشہ نے کانوں میں وہی ٹاپس ڈالتے ہوئے بتایا جو عادلہ نے اسے میٹرک پاس کرنے پر بنوا کر دیے تھے۔ تم تیار ہو گئی؟ ہاں، تم سے سٹریپ والے بلیک سینڈل لینے آئی تھی۔ اوہ، وہ تو میں نے پہن رکھے ہیں، عریشہ نے پاؤں سامنے کیا۔ تم کوئی اور دیکھ لو، براؤن۔ نہیں، سوٹ پرانا ہے تو میں جوتے بھی پرانے پہن لوں گی۔ مریم کا مزاج مکمل طور پر برہم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری بیکار لگنے لگی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ عریشہ کندھے اچکا کر میرون اور گلابی چوڑیاں پہننے لگی۔ مریم پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ عرشی، اب جلدی آ جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ عادلہ اندر آئیں، پھر تو ٹھٹک گئیں۔ بری بات عریشہ، کنواری لڑکیاں اتنا میک اپ نہیں کرتیں، انہوں نے نرمی سے ٹوکا۔ امی، زیادہ تو نہیں ہے؟ عریشہ نے آئینہ دیکھا۔ ہاں، بس لپسٹک ہلکی کر لو، زیادہ میک اپ سے نیچرل بیوٹی دب جاتی ہے، اور میری بیٹی ویسے ہی بہت پیاری ہے۔ اوکے، عریشہ اپنی تعریف پر خوش ہو گئی۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، تم بھی جلدی آؤ۔ بس چوڑیاں پہن لوں۔ وہ جلدی جلدی چوڑیاں پہننے لگی۔ تھوڑی تنگ تھیں اس لیے دقت ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اٹھنے والا شور بتا رہا تھا کہ سب گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں۔ چوڑیاں پہن کر عریشہ نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج غضب ڈھا رہی ہو، آئینے نے سرگوشی کی۔ اچھا، تو کیا آج وہ کچھ بولے گا؟ آئینہ خاموش ہوا، مگر اس میں صوبان کا عکس بولنے لگا۔ عریشہ گھبرا کر پلٹی۔ صوبان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچی کلیوں سی نازک لڑکی، گلابی رنگ اوڑھے، آنکھوں میں خوابوں کی دھنک، لبوں پر شرمیلی مسکان، جھکی نگاہ بتاتی تھی وہ صوبان پر اپنا آپ ہار چکی ہے۔ اس کی انا اور خود پسندی بلند ہونے لگی۔ آج تو اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ کوئی بھی ساری دنیا کے خزانے تم پر لٹانے کو تیار ہو جائے۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اشیاء کو خواہ چھیڑنے لگی۔ مجھے کسی کے خزانے کی ضرورت نہیں۔ عریشہ کو لگا یہی لمحہ ہے، اگر اس لمحے میں صوبان بندھ گیا تو ساری عمر کے لیے قید ہو جائے گا۔ تو وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے پرفیوم کی مہک عریشہ کے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ کبھی کبھی کسی کے کہے چند الفاظ انمول خزانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ وہ مستقل انجان بن رہا تھا۔ آپ کے پاس میرے لیے چند الفاظ بھی نہیں؟ عریشہ نے ایک ادا سے کہا۔ ایک پل کو صوبان حیران رہ گیا۔ اتنی بے باکی، اتنی جرأت، اتنا کھلا اظہار۔ تو سنو، وہ اس کے کان پر جھکا۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب منا چاہتے، مگر ایک انکہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ عریشہ، وہ عادلہ اپنی دھن میں اندر آئیں۔ صوبان بدک کر پیچھے ہٹا۔ عریشہ گھبرا کر مڑی تو ہاتھ لگنے سے پرفیوم کی شیشی نیچے گر گئی۔ عادلہ ششدر سی کھڑی بھول گئیں کہ کیا کہنے آئی تھیں۔ پرفیوم نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ خوشبو 400 بکھرنے لگی، خوشبو جو سارے راز افشا کر دیتی ہے۔ کب سے کہہ رہا ہوں اب نکلو بھی، مگر ان لڑکیوں کی تیاری بھی۔
सोबान बौखलाकर बाहर निकल गया। आदिला हक्का बक्का थी, बचपन से एक साथ पले पड़े थे। यूं खड़े होकर बात करना अनोखा ना था, मगर अनोखे तो दोनों के अंदाज थे। और कितनी देर है? आदिला ने संजीदगी से पूछा। बस आ रही हूँ। अरीशा दुपट्टा ओढ़ती बाहर खिसक गई। शादी में एंजॉय करते उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपनी माँ के लिए फिक्रों के न जाने कौन कौन से दर खोल आई है। गुड़ वाली चाय की प्याली से उठती भाप मादूम हो गई थी। अभी इब्रार ने एक घूंट नहीं लिया था। मास्टर साहब ईशा की नमाज पढ़कर आए तो ठिठक गए। वो अभी तक नहीं गया था। मास्टरनी ने बताया था उसने नमाज भी नहीं पढ़ी और खाने से भी इनकार कर दिया था। क्या बात है बिल्लू बेटा, ठीक तो हो? उन्होंने लोई उतार कर खूंटी पर टांगी। गांव की रातें ठंडी होने लगी थीं। रात को गर्म कपड़ों की ज़रूरत महसूस होती थी। जी मास्टर साहब, अबरार ने कहा और प्याली उठा ली। चाय में हल्की सी गर्माइश थी। वो एक ही घूंट में पी गया। घर नहीं जाना? उन्होंने चारपाई पर बैठकर खेस टांगों पर डाल लिया। इब्रार खामोश रहा। माँ इंतज़ार कर रही होगी, उन्होंने फिर कहा तो इब्रार खड़ा हो गया। मास्टर साहब ने उसे बगौर देखा, फिर नरमी से बोले, बिल्लू नहीं जी चाह रहा तो बैठ जाओ। ठंडी रात को गलियों में फिरने की ज़रूरत नहीं। इब्रार उसी तरह बैठ गया। चाचे ने कुछ कहा है? वो उसके घर के हालात से बखूबी आगाह थे। कुछ? इब्रार ने नज़र उठाकर उन्हें देखा। बहुत कुछ। सब कुछ चाचे का है। बस नहीं चलता उसका कि मेरे हाथ से किताबें छीन कर कहीं फेंक दे। वो चाहता है मैं कॉलेज छोड़कर उसके साथ ज़मीनें संभालूं। उसका बेटा नहीं है इसलिए चाहता है कि तुम उसके बाजू बनो। हाँ, कॉलेज छोड़ने वाली बात गलत है। ज़मीन सोना उगलती है तो इल्म जहन को जरखेज़ करता है। मास्टर साहब ने रसानियत से कहा। जाहिल क्या जाने इल्म की कदर। तुम खुद को आलम समझने लगे हो। वो धीरे से मुस्कुराए। इब्रार को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा ये मतलब नहीं है, पर चाची की हर शिकायत पर चाचा बार बार बेइज्जती करता है। खर्चा तक पूरा नहीं देता। माँ दूध बेच बेच कर किराया देती है। एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। क्यों, मेरा उस ज़मीन में हिस्सा नहीं है क्या? आज वो मेहनत कर रहा है तो कल को मैं भी कमाऊँगा। कहाँ ले जाऊँगा? इसी घर में लाऊँगा। इब्रार दिल की भड़ास निकालता चला गया। असगर को इसी बात का तो यकीन नहीं है। उसे लगता है कि जब तू पढ़ लिख कर किसी मुलाजमत पर लगेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, शहर चला जाएगा माँ के साथ। जैसा उसका सलूक है यही करूँगा। देख पुत्र, तू मेरे शागिर्दों में सबसे होनहार शागिर्द था। तुझे बहुत आगे जाना है, पर अभी तेरी मंजिल दूर है। सब्र और तहम्मुल से ये वक्त गुजार दे। उसे यही गिला है कि तू उसका हाथ नहीं बटाता। थोड़ा वक्त निकाल कर खेतों में चला जाया कर, उसके शिकवे भी दूर हो जाएंगे। मास्टर साहब ने रसानियत से समझाया। उसके शिकवे कभी दूर नहीं होंगे। आप जानते हैं शहर यहाँ से कितनी दूर है। दो वैगनें बदल कर जाना पड़ता है। कॉलेज शहर की आखिरी नुक्कड़ पर है। आते आते शाम हो जाती है। मैं क्या करूं? और चाचा ने कौन सा मेरा खर्चा उठा रखा है। एक एक पैसे के लिए तरसाता है। जिस दिन किराए की रकम कम हो मुझे पैदल कॉलेज तक जाना पड़ता है। वो तल्खी से कहता चला गया। और मास्टर साहब, आज मेरे साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, मैं कल इनके साथ कैसा सलूक करूँगा? यही कुछ लौटाऊँगा। नीयत नेक रख, अल्लाह सारे रास्ते खोल देगा। मुश्किल वक्त टल जाने के लिए होता है। इसे सब्र से गुजारेगा तो मीठा फल पाएगा। मैं तुझे यहीं ठहरा लूँ, पर तेरी माँ दरवाजे से लगी बिलक रही होगी। जा, माँ को इतना ना सता। इस दुनिया में अल्लाह के बाद तू ही उसका सहारा है। जा मेरा बेटा, अल्लाह निगहबान। इब्रार सुस्त रवि से उठा। अगर माँ के इंतज़ार का ख्याल ना होता तो कभी घर का रुख ना करता, मगर अब जाना ही था। रात काफ़ी बीत चुकी थी, मगर अभी भी सब लोग बगैर थके तबसरों में मसरूफ़ थे। चाय के 2 दौर चल चुके थे, मगर गपशप जारी और सारी थी। तौबा, न जाने किसी सस्ती ब्यूटिशियन से मेकअप करवाया था, सारा मुंह लालो लाल कर दिया। और आई शेड, तौबा। मरियम ने कानों को हाथ लगाया। और उसके ससुराल वाले देखे थे, सारी औरतें अपनी शादी के जोड़े पहन कर आई थीं, 15-15 साल पुराने। साजदा भी उनके साथ ही आ गई थी। अरे लोग बड़े सियाने हैं, मेरे तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हमीदा ने जलकर कहा। बानो ने अपनी देवरानी को हवा बनाया था। क्या लेकर आए उसके मैके वाले? खेत है सवा, और लेकर हमारा इतना खर्च करवा दिया। आप ही फ़ौरन उसकी बातों में आ जाती हैं। उनकी औकात का पहले नहीं पता था क्या? साजदा तड़क कर बोली। आदिला ने तवील सांस लेकर अरीशा को देखा। वो अब भी फातिमा और मरियम के साथ बातों में मगन थी। पूरी शादी में उन्होंने बहुत कुछ देखा और महसूस किया था। बेटी के बदले हुए अंदाज उनके तफक्कुरात में इजाफा कर रहे थे। उन्होंने बहुत गौर से अरीशा को देखा। वो वाकई बड़ी हो चुकी थी। अरीशा, उन्होंने घबराकर पुकारा। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सब मुड़कर उन्हें देखने लगे। काफ़ी देर हो गई है, अब चलो, सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी।
मैं तो सुबह बिल्कुल नहीं जा रही कॉलेज, इतनी तो थकन हो रही है, मरियम ने आराम से कहा। आदिला अरीशा को इशारा करके खड़ी हो गई। घर आकर भी अरीशा ने कपड़े नहीं बदले, यूं ही मसरूर सी घूमती रही। आखिर आदिला को टोकना पड़ा। अब क्या यूं ही चकराती रहोगी, कपड़े बदल कर आओ। अरीशा ने ठिठक कर माँ को देखा, वो कुछ उलझी हुई लग रही थी। उसे सुबह वाला मंजर याद आया तो कपड़े बदलने के बहाने खिसक गई। वापस आई तो आदिला जाग रही थी। वो खामोशी से कंबल ओढ़कर लेट गई। अरीशा, वो नीम गनूदगी में थी जब आदिला ने पुकारा, तुम्हें सोबान कैसा लगता है? अरीशा की सारी नींद उड़ गई। अच्छा है, अच्छा लगता है। आदिला किसी गहरी सोच में गुम हो गई। अरीशा मुंतज़िर थी कि वो कुछ और पूछें तो वो माँ से दिल का हाल कह देगी, मगर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अरीशा ने करवट बदलते हुए सोचा, अच्छा तो अम्मी को कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया है। अल्लाह खैर करे। वैसे सोबान में किस चीज़ की कमी है? सबसे बढ़कर अपना है। मैं हमेशा अम्मी की नज़र के सामने रहूँगी। अपनी ही सोचों ने उसके लबों पर फूल खिला दिए थे। जमीला कब से दहलीज पकड़े बैठी थी। रात गहरी हो गई। गलियों में फिरते आवारा कुत्ते भी मुंह छुपा गए। गहरी खामोशी पूरे गांव पर साए की तरह फैल गई। बाड़े में जानवर गर्दन हिलाते तो गर्दनों में बंधी घंटियां गुनगुनाने लगती। तारीक रात की गोद बेहद रोशन सितारों से भरी हुई थी। ताई, तुम अभी तक सोई नहीं? बुशरा आंखें मलती सर पर खड़ी थी। वो पानी पीने के लिए उठी थी जो सहन के आखिरी कोने में था। माँ का कलेजा गलियों में रुल रहा है। नींदर कहाँ से आए? जमीला ने दुपट्टे से आंखें खुश्क की। हाय अल्लाह, बिल्लू अभी तक नहीं आया। जमीला ने खा जाने वाली नज़रों से बुशरा को देखा। सारा स्यापा तो तूने लगाया था, क्या ज़रूरत थी झूठ सच लगाने की? पता भी है तेरे माँ प्यो गर्म दिमाग के हैं। लो, मैंने कोई झूठ बोला था? बिल्लू ने मुझसे खुद ये सब। बुशरा ने तुनक कर कुछ कहना चाहा। जमीला ने दुरुस्ती से उसकी बात काट दी। तो गुस्से में बिल्लू ने कुछ कह ही दिया था तो पी नहीं सकती थी ज़रा सी बात और? हाँ, सारा कसूर तो मेरा है। बुशरा रोहासी हो गई। हाय रब्बा, ये आधी रात को दरवाजे पर बारात क्यों खड़ी है? कुबरा की पाटदार आवाज़ पर बुशरा ने मुड़कर देखा। अम्मा, बिल्लू अभी तक घर नहीं आया। हाय, वो क्या नन्ना काका है जो घर का रास्ता भूल गया? कहीं फिर रहा होगा आवारा। तू क्या उसकी राह तक रही है? चल दफ़ा हो अंदर। अब माँ बेटे के तमाशे तो चलते रहेंगे, न दिन को चैन न रात को सुकून। कुबरा ने खा जाने वाली नज़रों से जमीला को देखा। जा कुबरा, ख्वामखा मेरा जी ना जला। मैंने नहीं कहा इससे मेरे पास दरवाजे पर खड़े हो। मैं अपने पुत्र की राह देख रही हूँ। पुत्र जिसे ना माँ की फिक्र है ना ख्याल। चल नी। वो बुशरा को टहूका लगाकर अंदर चली गई। जमीला ने तवील सांस लेकर घुटनों पर सर झुका लिया। बिल्लू ने तारों की रोशनी में दरवाजे पर इस्तादा उस साए को देख लिया था। शर्मिंदगी से उसके कदम मन भर के हो गए। सारे दिन की थकी हारी माँ को इस वक्त गर्म बिस्तर में होना चाहिए था। वो उसकी खातिर सर्दी में ठिठर रही थी। इब्रार को खामखा गुस्सा आने लगा। अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो? जमीला झटके से उठी और उससे लिपट कर रोने लगी। सदके जाऊँ पुत्र, तू कहाँ चला गया था? अम्मा कहाँ जाऊँगा, इधर ही था गांव में। तू आराम से सो जाती। आराम से? जमीला ने सर उठाकर बेटे को देखा। वो उससे ऊंचा हो गया था, ऐसा मशवरा दे सकता था। तारों की उजली रोशनी में जमीला के आंसू झिलमिला रहे थे। तुझे देखे बगैर तो मुझे साह नहीं आता पुत्र, नींद कैसे आती? अच्छा सर्दी है, अंदर चल। इब्रार को निदामत होने लगी। देख कितना ठंडा हो रहा है, चल लिहाफ ओढ़ के लेट, मैं तेरे लिए दूध पत्ती लाती हूँ। वो मना करना चाहता था मगर जमीला तेज़ी से बावर्ची खाने में चली गई। तभी बुशरा बावर्ची खाने से निकली, उसे देख कर ठिठकी। आ गया वापस, बड़ा ही अथरा है, अब्बे की दो बातें ना सुन सका। वो चलती हुई उसके सामने आई। इब्रार ने लब भींच लिए। वैसे इतना ही गुस्सा था तो वापस क्यों आया? तू मुझे समझती क्या है? मैं तो तुझे कुछ भी नहीं समझती। इब्रार ने एकदम उसे बाजुओं से दबोचा और गुर्राया। अपने आपे में रह, वरना तेरा वो हशर करूँगा कि याद करेगी। वो एकदम डर गई। इब्रार ने उसे झटके से छोड़ा और अपने कमरे में चला गया। वो कई कदम लड़खड़ा कर रुकी और साकित सी रह गई। शायद उसे बिल्लू से इस जारहाना रवैये की तवक्को ना थी। क्या ज़रूरत थी इतना गुस्सा करने की? कुबरा लिहाफ में दुबके असगर के पाँव दबा रही थी। शाबाश है, पहले मेरे कान भरती है, सुना सुना के गुस्से को हवा देती है, बाद में क्या ज़रूरत थी? असगर ने कुबरा के ही अंदाज में कहा। ले, मैंने तेरे कौन से कान भर दिए? कुबरा ने गुस्से से हाथ खींच लिए। पर ये जनानियों के वल फेरे बंदे की समझ में नहीं आते। जो सच था तुझसे वही कहा था, तो मैंने भी वही किया जो मुझे करना था। जवान खून है, तुझे उस पर यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इस तरह तो वो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा।
कुबरा ने पते की बात की। आखिर तू चाहती क्या है? असगर झंझलाया। कुबरा ने बल्ब की पीली रोशनी में शोहर का चेहरा देखा। असगर ना भूल, जवान धी का बाप है। क्या मतलब? असगर बुरी तरह चौंका। उस पर बस इतना रौब रख के वो तेरे कहने में रहे। बुशरा के लिए उससे अच्छा बर कहाँ से मिलेगा? असगर का मुंह हैरत से खुल गया। कल तक वो ज़माने भर का आवारा था, अब वो तुझे बुशरा के लिए ठीक लग रहा है? वो तो इसलिए कहती हूँ कि तू अकेला है, वो भी थोड़ा हाथ बटा दे। मास्टर साहब बता रहे थे पढ़ने लिखने में अच्छा है, कल को किसी अच्छी नौकरी पर लगा तो फ़ायदा भी तो अपना ही है। कुबरा ने तहम्मुल से समझाया। असगर किसी सोच में डूब गया। तो फिर मैं जमीला से अभी बात कर लेता हूँ, ये ना हो कि वो कुछ और सोच ले। जल्दी किस बात की है? कर लेंगे, बस ज़रा बिल्लू से नरम बात किया कर, ज़्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं। चल ठीक है, इस मामले में जनानियों की अकल कुछ ज़्यादा ही चलती है, असगर कहकर लेट गया। कुबरा ने दिल में सोचा, अभी से बात करके जमीला को अपने सर पर बिठा लूँ, पहले ही पुत्र पर बड़ा मान करती है। नबीला किचन में खाना बना रही थी। उनकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी, लेकिन दोपहर तक जब खाना बनने के कोई आसार नज़र ना आए तो मजबूरन उन्हें उठना पड़ा, वरना मोहसिन ने आकर शोर मचा देना था। तैयबा ने देखा मगर नज़रअंदाज कर गई। जब मेरे हाथ का बना खाना पसंद ही नहीं आता तो मुझे क्या ज़रूरत है इतना खपने की? बेगम साहिबा, जब तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर लेट जाएं, मैं जैसा तैसा बना ही दूंगी। मुलाजमा ने उन्हें हमदर्दी से देखा। वो बार बार पानी का घूंट भर रही थी। वो जैसा तैसा खाना मोहसिन को पसंद नहीं आता बतूल, तुम्हें तो पता है वो खाने के मामले में कितना नखरीला है। उन्होंने बतूल के हाथ से कटे हुए टमाटर लेकर हंडिया में डाले। अब आप में भी तो दम खम नहीं रहा, सीधे सीधे मोहसिन साहब की शादी कर दें। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही थी। हाँ, पर यह देख लीजिएगा लड़की को घरदारी का भी शौक हो, वरना तो। अंदर आती तैयबा ने बतूल का जुमला सुन लिया था, कड़े तेवरों से घूरा। तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती हैं, कब से कहा था मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। वो छोटी बीबी तब लाइट नहीं थी तो मैं बेगम साहिबा की मदद। हो गई मदद तो अब जाकर कपड़े इस्त्री कर दो, निकम्मे जाहिल लोग। बतूल नबीला को देखती चली गई। बुरी बात है बेटा, मुलाजमों के साथ भी ज़रा। उन्होंने रसानियत और नरमी से समझाना चाहा। तैयबा ने बात काट दी। मुझे तो आप हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं कि घर की बातें बाहर नहीं करते, और ख़ुद मुलाजिमों के सामने मेरी बुराइयां करती रहती हैं। नबीला ढकना पतीली पर देकर हैरत से मुड़ी। मैंने तुम्हारी कौन सी बुराइयां की हैं? बस रहने दे अम्मी, मैं सब जानती हूँ। मैं घर के काम नहीं करती, करूँ तो बेदिली से करती हूँ। आपका और घर का ख्याल नहीं रखती। शोहर की मेहनत की कमाई शॉपिंग में उड़ाती हूँ। मुझे नज़र भी आता है और सुनाई भी देता है। तैयबा बदतहजीबी से कहती चली गई। अगरचे इसमें से कोई एक बात भी झूठ नहीं, लेकिन इतनी तहजीब है मुझ में कि घर की बातें दूसरों पर, ख़ास तौर पर मुलाजमा के सामने ना करूं। और दूसरी बात, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का यह तरीका इंतहाई गलत है कि तुम बड़ों से बात करने की तमीज़ भी भूल जाओ। उन्होंने हल्की आवाज़ लेकिन सख्त लहजे में तनबीह की। तैयबा का मुंह खुल गया। आप मुझे फ्रस्ट्रेटेड कह रही हैं? तैयबा, अपने कमरे में जाओ, उन्होंने तहम्मुल से टाला। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, यही बातें आप जमाल से भी कहती हैं, तभी वो मुझे अपने पास नहीं बुलाते। वह गुस्से से पाँव पटकती चली गई। अंदर आते मोहसिन ने हैरानी से तैयबा को देखा। खैरियत अम्मी, भाभी को क्या हुआ? अंधे बैल की तरह टकरे मारती फिर रही हैं। मोहसिन, नबीला ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया। मोहसिन ने तेज़ी से आगे बढ़कर उन्हें संभाला। अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आओ। वो चाहती तो भी मोहसिन को कुछ नहीं बता सकती थी। वो जज्बाती सा लड़का था, ख्वामखा तैयबा से उलझने खड़ा हो जाता। कितनी बार कहा है तबीयत ठीक नहीं हो तो मत आया करें किचन में, लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं। वो उन्हें सहारा देकर कमरे तक लाया और आराम से लिटा दिया। नबीला ने लेटकर आंखें बंद कर लीं। अम्मी, क्या बात है? मोहसिन ने आहिस्तगी से पूछा। नबीला को अपने हसास बेटे पर टूट कर प्यार आया। उन्होंने आंखें खोल दी। हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर बिखर गई। जाओ बेटा, खाना तकरीबन तैयार ही था, बतूल से कहो तुम्हें रोटी डाल दे। अम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे खाने के लिए इतनी परेशान होती हैं। खा लूँगा, आप बस आराम से लेटी रहें। बल्कि ऐसा करता हूँ, यहीं ले आता हूँ, इकट्ठे मिलकर खाएंगे। वो पहले झिझलाया, फिर ख्याल आने पर लहजा बदल कर बोला था। बेटा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तुम? ओके, वो आराम से मान गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तैयबा के दिल में मेरे खिलाफ इतनी कदूरत और बुग़्ज़ है। लेकिन क्यों? मैंने तो कभी उसे बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी ही जाना। और वो न जाने जमाल से क्या कुछ कहती होगी। जमाल का ख्याल आते ही वो बेचैन हो गई। आदिला स्कूल से घर आई तो अरीशा अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने परेशान होकर तेज़ बरसती बारिश को देखा और जेठानी की तरफ आ गई।
जहाँ फातिमा पकोड़े बना रही थी और मरियम मज़े से चटनी में डबो डबो कर खा रही थी। तुम कॉलेज नहीं गई? वो मरियम को देखकर कुछ परेशान हो गई। इसका मतलब था अरीशा कॉलेज में अकेली है। सुबह से मौसम ख़राब था, मैंने तो अरीशा से भी कहा था छुट्टी कर ले, मगर वो मानी नहीं। मरियम ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मुझे तो लगता है वैन वाला नहीं गया, मौसम भी इतना ख़राब है। वो कुदरती तौर पर परेशान हो गई। चाची आप सोबान को फ़ोन करें, वो अरीशा को पिक कर लेगा। फातिमा ने मशवरा दिया तो वो सर हिलाती फ़ोन की तरफ आ गई। सोबान ने तसल्ली दी कि वो अरीशा को ले लेगा। अब खुदा करे वो कॉलेज से ना निकली हो, आदिला ने ज़ेरे लब कहा। फातिमा उनके लिए वहीं चाय ले आई। अरे अरीशा आ जाए तो इकट्ठे पी लेंगे। चची आप क्यों परेशान हो रही हैं, सोबान ले आएगा। आप आराम से बैठकर चाय पिएं और गर्मा गर्म पकोड़े खाएं। फातिमा ने तसल्ली दी। आपा कहाँ हैं? बाथरूम में हैं। तभी बाहर के दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। अब्बा होंगे, वो भी सुबह के निकले हैं। फातिमा ने ट्रे उनके सामने रखे और दुपट्टा सर पर रखती भागती हुई सेहन अबूर कर गई। बारिश का पानी ड्योढ़ी में भी इकट्ठा होने लगा था। फातिमा ने दरवाज़ा खोल दिया, फिर मोहसिन को देखकर ठिठक गई। आप? अल्लाह की बंदी अंदर आ जाने दोगी? मैं बारिश में खड़ा हूँ। ओह सॉरी, आ जाएं। फातिमा ने खिसिया कर रास्ता दिया। वो कब से शेड के नीचे खड़ी बरसती बारिश को देख रही थी। रिक्शे वैगने उसके सामने आते और गुजरते रहे। तभी एक गाड़ी उसके पास आ रुकी। सोबान को देखकर वो अंदर तक पुरसकून हो गई। आज तो कुछ और भी मांगती तो, लेकिन कुछ और क्यों मांगती भला। वो भागती हुई गाड़ी में आ बैठी। आप कैसे आ गए? चची का फ़ोन आया था। बहुत अच्छा हो गया, मैं कब से वैन का इंतज़ार कर रही थी। वैन वाले का दिमाग ख़राब है जो इस मौसम में रोड पर निकलेगा। सोबान ने गाड़ी बढ़ाई। और मौसम तो सुबह से ख़राब था। जब मरियम ने छुट्टी की तो तुम क्यों आई? अरीशा को उसकी डांट खासी बुरी लगी। मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट था। हो गया? नहीं, मिस नहीं आई। सोबान ने बेसाख्ता उसे देखा और हंस दिया। आपको इतना बुरा लगा है तो ना आते, मैं पहुंच ही जाती घर। वो मुंह बनाकर बैठ गई। तभी गाड़ी में किसी खुशबू का एहसास हुआ। उसने चौंक कर सोबान को, फिर पीछे पलट कर देखा। वहाँ सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा महक रहा था। ये किसके लिए है? एक दोस्त की अयादत को जा रहा था। अच्छा, दिल खुश फहम को ठेस सी लगी। मैं समझी शायद किसी दोस्त से मेरे लिए गाड़ी उधार मांगी है। बहुत खुश फहम हो, वैसे ये गाड़ी भी उसी की है जिसकी अयादत को जा रहा हूँ। तो आपके पास क्यों है? वर्कशॉप में थी, उसने कहा आते हुए लेता हूँ। कोई ख़ास दोस्त ही होगा। अरीशा के लहजे में हल्की सी जलन थी। सोबान मुस्कुराकर खामोश हो गया। अरीशा कुछ लम्हे खामोशी से बैठी रही, फिर पीछे मुड़कर बुके से एक बड़ा सा गुलाब खींच लिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सारा बुके ख़राब हो जाएगा। हो जाए, बहुत ही ऊट पटांग लड़की हो। सोबान घूर कर रह गया। अरीशा गुलाब को उंगलियों में घुमाने लगी। मुझे गुलाब बहुत पसंद है। कुछ देर के बाद अरीशा ने धीमे लहजे में कहा, मेरा दिल चाहता है कोई मुझे भी सुर्ख गुलाब दे। अरीशा के लहजे और आंखों से उसकी ख्वाहिश मुतरश्शे थी। तुम्हारा दिल एक्सीडेंट करवाने को चाह रहा है। अल्लाह ना करे। मैं जिसके लिए ले जा रहा हूँ वो भी एक्सीडेंट के बाद ही अस्पताल पहुँचा है। गालिबन आप जानते नहीं, सुर्ख गुलाब मोहब्बत की अलामत होता है। सॉरी, मुझे फूलों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। शायराना मिजाज रखने वाला बंदा फूलों के बारे में नहीं जानता। शायराना मिजाज? कम ऑन अरीशा, मैं तो अच्छा खासा प्रैक्टिकल बंदा हूँ। हाँ, तुम लगता है ख्वाब बहुत देखती हो। वो हंसा। अच्छा, और वो जो नज़म मुझे सुनाई थी? कौन सी? सोबान के सरसरी लहजे पर अरीशा ने हैरत से उसे देखा। जो लम्हा उसकी सारी ज़िंदगी पर मुहित हो गया था, सोबान के ख्याल से बिल्कुल महव हो चुका था। तो क्या वो सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन थी, सिर्फ एक पल के जज्बात? और मैं ख्वाब नगरी में उस एक लम्हे को थामे उन लफ्ज़ों की पायल छनकाती अब तक महवे रक्स हूँ। उसने सोबान को देखा, वो इन हमाक से गाड़ी चला रहा था। अरीशा ने हाथ में पकड़े गुलाब को देखा और उससे अपनी मोहब्बत की तस्दीक चाही। एक एक पत्ती फूल से अलग होकर उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान डोलती उसकी गोद में गिरने लगी। मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है। गाड़ी आहिस्तगी से घर के सामने रुक गई और अरीशा हक्का बक्का हाथ में पकड़े गुलाब की आखिरी पत्ती पर अटक गई थी, जो नहीं है पर जाकर रुक गई थी। उसने चिंचलाकर उसे बाहर उछाल दिया और खुद तेज़ी से उतरकर भाग गई। सोबान वहीं से वापस चला गया था। नबीला को भी ले आते, आदिला ने तीसरी बार मोहसिन से कहा तो हमीदा मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर रह गई। चची, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फातिमा को बुलाया है। क्यों? तुम्हारी भाभी कहाँ गई? 2 दिन सास की देखभाल भी नहीं कर सकती, हमीदा चमक कर बोली। वो करती तो मसला किस बात का था? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, फिर बराह रास्त फातिमा से पूछने लगा, क्यों फातिमा, चल रही हो? फातिमा घबराकर माँ को देखने लगी तो मरियम फ़ौरन बोल उठी,
محسن بھائی میں چلوں؟ میں فاطمہ کو امی کی دیکھ بھال کے لیے لے جا رہا ہوں، تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ مریم منہ بنا کر اٹھ گئی۔ ارے مگر فاطمہ کے بغیر میں… حمیدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے قبل ہی برکت صاحب کی آمد ہو گئی۔ شومئی قسمت کے انہوں نے سن بھی لیا تھا۔ ہاں ابھی تمہارے میکے سے بلاوا آ جائے تو فوراً بھیج دو گی، اب میری بہن کو ضرورت ہے تو آنا کانی کر رہی ہے۔ اٹھو فاطمہ جاؤ، بارش بھی رک گئی ہے، کل میں پتہ کرنے آؤں گا تو تمہیں لے آؤں گا۔ انہوں نے ساری بات ہی ختم کر دی۔ سب کے سامنے کچھ کہنا بے عزتی کروانے کے مترادف تھا، سو حمیدہ دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ عادلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ چچی عریشہ کے لیے پکوڑے لے جائیں، کہہ رہی تھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، آئی ہی نہیں۔ فاطمہ نے کہا۔ نعمان اپنے اسٹور کے دروازے میں کھڑا برستی بارش کو دیکھ رہا تھا، جس کے اوپر نعمان سپر اسٹور اینڈ پی سی او کا بورڈ لگا تھا۔ چچا جب فوت ہوئے تو یہ اسٹور اتنی اچھی حالت میں نہ تھا، نعمان نے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی تھیں۔ اب یہ علاقے کا صاف ستھرا اور خوب چلتا ہوا اسٹور تھا۔ برستی بارش میں کسی گاہک کے آنے کی تو امید نہ تھی، سو وہ اطمینان سے کھڑا موسم کے تیور دیکھ رہا تھا۔ نومی بھائی گرما گرم جلیبیاں اور سموسے لے کر آؤں؟ اس کے ساتھ کام کرنے والا لڑکا سر پر آ کھڑا ہوا۔ جانے دے یار، بارش تیز ہے۔ اب اتنی بھی تیز نہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ مسموسی شکل بنا کر بولا تو نعمان ہنس دیا۔ تیرا ندیدہ پن نہیں جائے گا، چل جا لے آ۔ نعمان نے پیسے نکال کر دیے تو وہ بھاگ گیا۔ نعمان نے سی ڈی پلیئر کی آواز اونچی کی اور شیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے رنگ سا منظر تھا، تواتر سے برستی بارش، بھیگتی ٹوٹی پھوٹی سڑک اور سڑک پر جمع ہوتا پانی۔ اسی پانی میں ایک دم رنگ سے ابھر آئے۔ نعمان کا دل اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کھڑے پانی میں دھمال سا ڈالنے لگا۔ چند منٹ تھے اور اسے یہاں سے گزر جانا تھا، اور یہی چند منٹ نعمان کی زندگی کا حاصل تھے، مگر خود پر چھتری تانے سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی وہاں سے گزری نہیں بلکہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نعمان دم بخود رہ گیا۔ ایک خواب مجسم ہو کر اس کے سامنے ٹھہر گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کر رستہ دیا، وہ تیزی سے اندر آئی اور چھتری بند کر دی۔ چھتری کے باوجود اس کی سیاہ چادر کہیں کہیں سے بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے فون کرنا ہے۔ نعمان نے بوکھلا کر فون سیٹ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ تیزی سے نمبر ڈائل کر رہی تھی اور نعمان چپکے چپکے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ عام سے خدوخال کی عام سی لڑکی اس کے لیے کتنی خاص تھی، یہ صرف نعمان کا دل جانتا تھا۔ وہ ہر روز یہیں سے گزرتی اور نعمان ہر روز اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ اسے وہ اچھی لگتی تھی، اچھی نہیں بہت ہی اچھی۔ ہیڈ ماسٹر افتخار حسین کی اکلوتی بیٹی، استانی عائشہ بی اے بی ایڈ۔ جی ابو السلام علیکم۔ میں عائشہ۔ جی موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا تھا، اس لیے خراب موسم میں گھر سے نکلنا پڑا۔ ایمرجنسی ہی تھی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، گھر میں جو کر سکتی تھی کر چکی، مجھے لگتا ہے انہیں فوراً اسپتال لے جانا ہوگا۔ اس کے لہجے اور چہرے سے پریشانی ہو ادا تھی۔ بظاہر رجسٹر میں گم نعمان چوکنا ہو گیا۔ اتنی دور آپ کو تو پہنچنے میں ہی گھنٹہ لگ جائے گا، ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں کیا کروں؟ میں کچھ… نعمان بنا سوچے سمجھے بول اٹھا۔ عائشہ نے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ رسیور لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ عائشہ نے رسیور دے دیا۔ جی ماسٹر صاحب، میں نعمان بول رہا ہوں، سپر اسٹور والا۔ آپ کہیں تو میں مدد کر دوں؟ جی ٹھیک ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ تمہاری بڑی مہربانی بیٹا، اگر کسی طرح انہیں اسپتال پہنچا دو، میں بھی فوراً پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماسٹر صاحب اس کے مؤدب لہجے پر شکر گزار لہجے میں بولے۔ نعمان کی یوں بھی ان کے ساتھ سلام دعا تھی، وہ اکثر یہیں سے گھر کا سودا سلف لیتے۔ عائشہ کو فون دو۔ نعمان نے رسیور عائشہ کی طرف بڑھایا۔ لیکن ابو… وہ بات سن کر کچھ کہنے لگی۔ عاشق ضرورت کے وقت کسی سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ وقت اگر مگر کرنے کا نہیں ہے۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا تو اس نے رسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آپ گھر جائیں اپنی والدہ کے پاس، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، نعمان نے عجلت میں کہا۔ حد کرتے ہو محسن، مجھ سے تو پوچھ لیتے، خواہ فاطمہ کو تکلیف دی۔ نبیلہ نے پیار سے پاس بیٹھی فاطمہ کو دیکھا جو خجل سی ہو رہی تھی۔ محسن ہنستا ہوا اماں کے قریب بیٹھا۔ آپ نے تو کبھی زندگی میں تسلیم نہیں کیا کہ آپ بیمار ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماریاں تو زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اب ان کو کیا ہوا بنایا جائے؟ اور جو میں بتا دیتا کہ فاطمہ کو لینے جا رہا ہوں تو آپ اجازت دے دیتی اور نہ ہی ممانی اسے بھیجتی۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، فاطمہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ عسکری بی بی، میں آپ کو یہاں نصیحتیں کرنے نہیں لایا، اب جلدی سے کچن میں جا کر 2-4 اچھی ڈشز بنا کر فریز کر دیں، اور ہاں رات کے لیے چکن پلاؤ ضرور بنانا۔ بدتمیز، اٹھو یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں، پہلے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت سی باتیں کرنا ہے۔ نبیلہ نے ڈانٹا تو وہ آرام سے اٹھ گیا۔ جو مرضی کریں، بس کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ میرے لڑکے بھی انوکھے ہی ہیں، گھر کے کھانے کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔
जमाल भी बिल्कुल इसी तरह किया करता था। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, यहाँ पास आओ। फातिमा उठकर उनके करीब आ गई। चलो अच्छा ही हो गया, मैं भी सारा दिन किसी से बात करने के लिए तरस जाती थी। फातिमा ने चौंक कर उन्हें देखा, वो भी उसकी नज़रों में सवाल पड़ गई थी। तैयबा की अपनी मसरूफियात हैं, जमाल के जाने के बाद उदास भी रहने लगी है। लो तैयबा भी आ गई। तैयबा खूबसूरत मैरून सूट में बिल्कुल तैयार थी। फातिमा आई है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अच्छा हो गया, आंटी को भी कंपनी मिल जाएगी। मैं भी इनकी वजह से कई दिनों से अम्मी के घर नहीं जा सकी। आंटी मैं ज़रा होकर आती हूँ। फातिमा हक्का बक्का फुप्पो की शक्ल देखने लगी। वो नज़रें चुरा गईं। अल्लाह की शान, ऐसी शान है बेनियाजी। ना बीमार सास का ख्याल, ना घर आए मेहमान का ख्याल। 2 घड़ी पास बैठना तो एक तरफ, चाय पानी पूछना भी गवारा नहीं। और फुप्पो ने तो कभी आधा लफ्ज़ नहीं बताया कि बहू रानी के मिजाज आसमान पर होते हैं। अब अंदाज़ा हुआ मोहसिन मुझे क्यों लाया था। अरे भाई तुम किस सोच में डूब गई हो, जल्दी से चाय बना कर लाओ, फुप्पो भतीजी मिलकर पियेंगे। और हाँ, कबाब भी फ्राई कर लेना। फुप्पो की आवाज़ पर वो चौंक गई और मुस्कुराकर किचन में आ गई। सजा सजाया खूबसूरत खुला सा किचन, जिसमें ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। लोग भी कितने नाशुक्रे होते हैं, उसने तवील सांस लेकर सोचा। तो बाल देखो इतने बेजान और रुखे। वो तो आई थी कि मरियम के साथ मिलकर अपना फेवरेट ड्रामा देख ले, कि ताई ने दबोच लिया। और उनकी मोहब्बत के सामने अरीशा की कहाँ चलती थी। सो अब आराम से बैठी तेल लगवा रही थी। एक ही इकलौती औलाद हो तुम, और तुम्हारी माँ को इतनी भी फिक्र नहीं है। अरे दिमाग कमज़ोर होता है, बाल झड़ने लगते हैं। अम्मा तुम्हें भी तो सारी फिक्रें अरीशा की ही रहती हैं, कभी इतने प्यार से मेरे सर में तो तेल लगाया नहीं, मरियम ने चिढ़कर कहा। हमीदा ने आंखें निकाली तो मुंह बनाती पास बैठ गई। तुम क्यों जेलस होती हो, अरीशा ने नाज से कहा। जेलस होती है मेरी जूती। ज़्यादा बक बक ना कर, चल हंडिया में डोई चला के आ। एक फातिमा वहाँ जाकर बैठ गई है। मरियम गुस्से से धप-धप करती किचन में चली गई। पागल, ख्वामखा जलने लगती है। तू तो मुझे बचपन से ही प्यारी है। याद है जब तेरी माँ तुझे खींचकर स्कूल ले जाया करती थी तो तू भागकर मेरी गोद में आ छुपती थी। ताई की जुबान फिर से शहद टपकाने लगी। अरीशा की याददाश्त में ऐसा कोई लम्हा नहीं था। हाँ, ये याद था कि अब्बा की वफ़ात के बाद ताई उससे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लगी थी कि जताने लगी थी। अरीशा का जहन इन गुत्थियों को समझने के काबिल नहीं हुआ था। हाँ, कभी कभी ये मोहब्बत माँ की मोहब्बत के मुकाबिल खड़ी हो जाती। ये सूरत हाल अरीशा के लिए तो नहीं, अलबत्ता आदिला के लिए ज़रूर तकलीफ़देह हो जाती थी। तुम्हारी माँ और फूफी ने हमेशा मुझे कमतर ही जाना। मैं अनपढ़, जाहिल, वो पढ़ी लिखी औरतें, मेरा उनका मुकाबला क्या। ताईजान ऐसी बात क्यों कर रही हैं? बात तो यही सच है, मैं तो सारी ज़िंदगी उनकी अकल का मुकाबला नहीं कर सकी। मैं घुन्नी मीसनी नहीं हूँ, जो दिल में वही ज़ुबान पर। तेरी माँ ने बड़ी कोशिश की कि तुझे मुझसे दूर रख सके, तुझे खींच कर ले जाती थी, पाबंदियाँ लगाती थी। और मैं ऐसी पागल, जब तक तेरे मुंह में नवाला ना डाल दूँ अपने हलक से खाना नहीं उतरता था। उन्होंने एक तवील सांस भरी। अरीशा उनके लहजे से बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। तभी पलटकर उनका तेल वाला हाथ पकड़ लिया। जानती हूँ ताईजान कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ले पगली, अपना हाथ क्यों ख़राब कर लिया? कुछ नहीं होता, तेल ही तो है। ऐसे मखमल जैसे हाथ हैं तेरे, इनकी हिफाजत किया कर। ओके, अब जल्दी से बाल समेट दें, अभी अम्मी की आवाज़ आ जाएगी। अच्छा अर्शी, अपनी माँ से पूछना 2000 होंगे। महीने के आखिरी दिन है, पहले ही शादी पर इतना खर्चा आया है। नौमान से मांगे तो जान खा लेगा। घर में एक बोटी नहीं, और तुम्हारे ताया के हलक से खाली सब्जी उतरती नहीं। हाँ, अम्मी के पास पड़े हैं, मैं अभी ला देती हूँ। ज़रा जल्दी लाना। उन्होंने उजलत में उसके बाल समेटे तो वह अपने घर की तरफ आ गई। आदिला सब्जी बना रही थी, उसे डांटने लगी। ना स्टडीज़ की फ़िक्र है, ना घर के किसी काम की। चाहती हो तो बैठ ही जाती हो। अच्छा, मैं आकर करती हूँ, अभी तो 2000 दें। वो क्यों? आदिला ने हैरान होकर देखा। ताई को ज़रूरत है। किस लिए? आदिला ने गुस्सा दबाते तहम्मुल से पूछा। पता नहीं, अब दे भी दें। पर्स में है, मैं निकाल लूँ? वो झिंझलाई। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। महीने के आखिरी दिन है, मैंने अपने खर्चे के लिए रखे हैं, और तुमने बता दिया होगा कि माँ के पास हैं। हाँ, उसने कान खुजाया। अम्मी, हमारा कौन सा इतना खर्चा है? हाँ, हम तो हवा खाकर और पानी पीकर ज़िंदा हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो? उन्हें गुस्सा आ गया। तो उन्हें भी तो ज़रूरत है। दे देती अगर मुझे यकीन होता कि उन्हें वाकई ज़रूरत है। अम्मी प्लीज़, अब तो मैं उनसे कह आई हूँ, बाद में भले मत दीजिएगा। वो मिन्नतों पर उतर आई। अर्शी, तुम सचमुच बहुत बेवकूफ़ हो। 2 बोल मोहब्बत पर पिघल जाती हो। अच्छा जाओ। क्या करूँ? नबीला ठीक ही कहती है, मुझे कोई कमेटी डाल लेनी चाहिए, शायद इसी तरह बचत हो सके। मगर ये लड़की, क्या करूँ इसका? खूबसूरत लहजों के पीछे छुपे रवैयों को पहचान ही नहीं पाती। वो वाकई तशवीश का शिकार हो गई थी।
अच्छा सुनो, जल्दी वापस आओ और आकर बर्तन धो। एक तो पता नहीं अम्मी को क्यों मेरे मखमल जैसे हाथ नज़र नहीं आते। वो झुंझलाकर दरवाज़ा पार कर गई। नौमान ने बेचैनी से पहलू बदलते अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा। वो कब से आया बैठा था मगर आयशा की एक झलक भी दिखाई ना दी थी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा, अगर उस दिन तुम मदद ना करते, उस तूफ़ानी बारिश में आयशा अकेली कहाँ कहाँ ख्वार होती। मास्टर साहब की आवाज़ पर उसने चौंक कर उन्हें देखा। मेरा फ़र्ज़ था, आखिर बरसों की मोहल्लेदारी है, उसने मुअद्दिब लहजे में कहा। और सुनाओ, कारोबार ठीक जा रहा है? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सुबान तो MBA कर रहा है गालिबन। सुबान के जिक्र पर वो बदमज़ा हो गया। सुबान और उसकी तालीम खासा नागवार मौजू था। बस मास्टर साहब, अब्बा बीमार हो गए तो मुझे कारोबार संभालना पड़ गया। BA में पढ़ रहा था, फिर सोचा किसी एक को तो कुर्बानी देना ही है। छोटे बहन भाई किसी मंजिल तक पहुंच जाएं तो यही काफ़ी है। उसने हत्तल इम्कान खुद पर इनकसारी तारी की। जाहिर है अब उन्हें यह तो नहीं बता सकता था कि शुरू से ही पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। माशाअल्लाह, वरना आजकल कौन किसी के बारे में सोचता है। अब्बू, दरवाजे की दूसरी तरफ से आयशा की आवाज़ पर उसने बेसाख्ता देखा। वो ज़रा ओट में खड़ी थी। ले आओ बेटा, अंदर ही ले आओ। नौमान का दिल चाहा मास्टर साहब का मुंह चूम ले। आयशा ने अंदर आकर सलाम किया और दरमियानी मेज़ पर ट्रे रख दी जिसमें चाय के साथ बिस्किट और निमको वगैरह मौजूद थे। उसने सब्ज़ दुपट्टा माथे तक ओढ़ रखा था। नौमान ने चोर निगाहों से देखकर चेहरा झुका लिया। मोहब्बत में पहली शर्त एहतराम है। उसके दिलो दिमाग ने पहली बार सर तस्लीम खम किया था। वो मोतर हवा के झोंके की तरह आई और गुजर गई। वो सर झुकाए चाय के घूंट भरता मास्टर साहब के सवालों के जवाब देने लगा। मास्टर साहब को ये लड़का अच्छा लगा था। फातिमा किचन में मसरूफ़ थी। इर्द गिर्द अनवाओ इकसाम के खाने और डब्बे बिखरे थे। उसका इरादा आज वापस जाने का था, सो कुछ खाने बनाकर फ्रीज़ कर रही थी। कमाल है, आज घर में दावत है और मुझे खबर ही नहीं। तैयबा की आवाज़ पर फातिमा पलटी और मुस्कुरा दी। वो बज़ाहिर फ्रिज खोले उसका जायज़ा ले रही थी। दावत कहाँ भाभी, वो तो आज मुझे वापस जाना था तो सोचा कुछ खाने बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। हाँ भाई, अब तुम्हारे हाथ जैसा जायका हमारे हाथ में कहाँ। उसका लहजा सरासर तंजिया था। नहीं, वो मोहसिन कह रहा था तो। फातिमा ठिठक सी गई। वो सीधी सादी लड़की थी, तैयबा के मिजाज की वजह से वैसे ही उससे दूर रहती। मोहसिन की बड़ी मानती हो। फातिमा तेज़ी से पलटी। तैयबा मुस्कुराकर बाहर निकल गई। भाभी ने ऐसे क्यों कहा? फातिमा बेटा बस करो, थक जाओगी, सुबह से लगी हो। नबीला फूफो ने आकर उसे चौंका दिया। जी फूफो, हो गया है बस। चलो फिर बाज़ार चलते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सा सूट लेकर आते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। कुछ बातें ज़रूरत के लिए नहीं, दिल की खुशी के लिए की जाती हैं डियर कज़न। मोहसिन को गालिबन नबीला ने इसी मकसद के लिए बुलाया था। फातिमा रुख मोड़कर डब्बे फ्रीज़र में रखने लगी। वो अभी तक तैयबा की कही बात में उलझी थी। मोहसिन और नबीला के इसरार पर उसे जाना ही पड़ा। तैयबा ने उन्हें जाते देखा तो किलस कर रह गई। बहुत नाज उठाए जा रहे हैं भतीजी के, और वो भी कितनी घुन्नी और मीसनी है। फुप्पो फुप्पो कहती आगे पीछे फिरती है। कोई गर्ज है तभी इतनी जान मारी हो रही है, वरना कौन इतना करता है। तैयबा की खुद गर्ज फितरत उसके दिमाग में खन्नास भरने लगी। हालांकि फातिमा की फितरत में ही खिदमत गुजारी और खलूस शामिल था, मगर तैयबा को आदत थी हर किसी को अपनी ऐनक से देखने की, और ऐनक भी वो जिसके शीशे बेहद धुंधले थे। बहनों आई थी मरियम के लिए अपने देवर का रिश्ता लेकर, लेकिन मरियम क्यों? फातिमा उससे बड़ी है। हमीदा ने एतराज़ किया। मैं क्या करूं, उसे तो मरियम ही पसंद है। हालांकि मैंने कहा भी कि फातिमा से करवा देती हूं। अब मरियम को देवरानी बनाने का मतलब है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं। बानो ने मज़े से कहा। मरियम को तो आग लग गई। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी देवरानी बनने का, और तुम्हें मेरे लिए वही मिला है, पुख्ता उम्र का क्लर्क जिसके दांत 24 घंटे मुँह से बाहर रहते हैं। क्या करे, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अपना चौखटा देखा है, हर नक्श फ्रेम से बाहर, और मुंह पर ये खिले हुए गुल बूटे। ऐसी हूर पर ही नहीं हो जो कोई शहजादा तुम्हें ब्याहने आएगा। हमारे जैसे घरों में यही दुकानदार क्लर्क ही झांकते हैं। तुम्हारा देवर अगर दुनिया का आखिरी मर्द भी हो तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। और अम्मा, अगर आपने हाँ करने की कोशिश की तो मैं कुछ खा लूँगी, बता रही हूँ। वह तनफन करती अंदर कमरे में घुस गई। देखा अम्मा, इसकी ज़ुबान देखी है, और इसे कॉलेज में पढ़ाओ। बानो ने माथा पीट लिया। थोड़ा तहम्मुल रख बानो, तुझे भी हिल हिल करने का शौक़ है। ज़रूरत क्या थी उसके सामने बात करने की, और वैसे भी जब तक फातिमा की नहीं हो जाती मैं तो मरियम के बारे में सोचूंगी भी नहीं। हमीदा ने साफ कह दिया। अच्छा मरियम की रहने दो, अभी नौमान की नहीं करनी। हमीदा ने हाथ में पकड़ा कप ट्रे में पटका। जब तक दोनों लड़कियों की नहीं हो जाती मैं तो लड़कों का नाम भी नहीं लूँगी। और अगर तो अपनी वो मोटी भैंस जैसी नंद मेरे सर थोपने का सोच रही है तो मरियम की तरह मेरी तरफ से भी साफ इनकार है। हो तो मेरी माँ, पर काम और इरादे सारे दुश्मनों वाले हैं। कोई एक वाला तो मेरे सर से टलेगी।
اپنی بلائیں میرے سر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کرو بی بی۔ حمیدہ نے دونوں ہاتھ پٹاخ سے اس کے سامنے جوڑے، مارے غصے کے بانوں کو رونا ہی آ گیا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، اب نہیں آؤں گی۔ ابا سے سلام کہہ دینا، اس گھر میں میری یہی عزت ہے۔ جوتا پہن کر چادر اوڑھتی بولتی دروازے سے نکل گئی۔ عزت کروانے والے کام بھی تو ہوں۔ حمیدہ بڑبڑائی، پھر ٹرے پر نظر گئی، 1 نمبر کی بھوکی ہے۔ جاؤ بیٹا، طیبہ کو بھی بلا لاؤ۔ جب سے وہ لوگ بازار سے آئے تھے طیبہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ اب رات کا کھانا کھایا تو نبیلہ نے فاطمہ سے کہا، کوئی ضرورت نہیں، فاطمہ ملازمہ نہیں ہے۔ محسن نے سختی سے کہا، بھابھی کو خود تو احساس ہی نہیں، سارا دن اپنے کمرے میں بند، 2 گھڑی مہمان کے پاس بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں۔ نبیلہ چپ سی ہو گئی، وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، چھوڑیں اب اتنی سی بات کے لیے بدمزگی کیوں کروائیں۔ فاطمہ اٹھ گئی، نبیلہ نے توصیفی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار بچی ہے۔ جی، بڑی مامی کی تو نہیں لگتی، محسن نے معصومیت سے کہا، بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اچھا میں ہاتھ دھوؤں؟ وہ ہنستے ہوئے چلا گیا، مگر واپسی پر راہداری سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ فاطمہ طیبہ کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ ہینڈل پر تھا، مگر بت کی مانند ساکت و صامت۔ کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوتے ہی وہ آہستگی سے اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ ادھ کھلے دروازے سے طیبہ کی سسکیاں باہر آ رہی تھیں۔ جمال، اب میری بس ہو گئی ہے، کسی فالتو سامان کی طرح گھر کے کونے میں پڑی ہوں، نہ کوئی حیثیت ہے نہ اہمیت، اور کل جب آنٹی ملازمہ کے سامنے میری برائیاں کر رہی تھیں، کچھ نہ پوچھو میرے دل پر کیا گزری۔ مجھے نہیں پتا آنٹی نے مجھ سے کس بات کا بیر باندھا ہے، کیا صرف اس لیے کہ میں آپ کی پسند ہوں؟ محسن کو فاطمہ کا تو نہیں پتہ چلا، لیکن خود غصے سے برا حال ہو گیا۔ لیکن طیبہ کی اگلی بات نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی، اور وہ فاطمہ سارے گھر میں یوں دندناتی پھر رہی ہے گویا وہ اس گھر کی بہو ہو۔ اور جمال، تم یقین کرو نہ کرو، محسن کا کوئی نہ کوئی چکر فاطمہ کے ساتھ۔ فاطمہ لڑکھڑائی، عقب سے محسن نے اسے تھام لیا۔ فاطمہ نے تڑپ کر دیکھا، اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے محسن کے ہاتھ ہٹائے اور بھاگتی چلی گئی۔ محسن کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس نے تیزی سے پورا دروازہ کھول دیا۔ طیبہ نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ طیبہ کا رنگ ایک لمحے کو زرد پڑ گیا۔ میں نے آپ جیسی گھٹیا عورت ساری زندگی نہیں دیکھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دوسری طرف جمال نے بخوبی سنی۔ ڈرامہ باز عورت، محسن نے نفرت سے کہا اور مڑ گیا۔ کچھ لمحے اور کھڑا رہتا تو شاید اس کا گلا دبا دیتا۔ طیبہ، طیبہ کیا ہوا؟ جمال کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تم نے سنا جمال؟ یہ اوقات ہے میری اس گھر میں، مجھے اس طرح گالیاں دی جاتی ہیں۔ محسن آندھی و طوفان کی طرح کھانے کی میز تک آیا جہاں فاطمہ روتی جا رہی تھی اور نبیلہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا ہے۔ اٹھو فاطمہ، تمہیں گھر چھوڑاؤں، محسن نے کہا۔ کیا ہوا محسن؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، فاطمہ رو کیوں رہی ہے؟ واپس آ کر بتاتا ہوں۔ اٹھو فاطمہ، وہ سختی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ اپنا چہرہ صاف کرتی فاطمہ اس کے پیچھے تھی۔ میری ہی غلطی ہے، مجھے فاطمہ کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیسی کینہ پرور عورت ہے، آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں جمال بھائی سے کہہ رہی تھی۔ وہ غصے میں پورے کمرے میں چکرا رہا تھا۔ نبیلہ سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ اب پتہ چلا جمال بھائی مجھے فون کیوں نہیں کرتے، ایسا ہی کچھ میرے بارے میں بھی کہتی ہوگی۔ محسن بیٹھ جاؤ، نبیلہ نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے تو فاطمہ کی فکر ہے، نہ جانے کیا سوچتی ہوگی۔ طیبہ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسی تہمت لگاتے؟ کیسی شرم لحاظ اور رکھ رکھاؤ والی لڑکی ہے وہ، اس نے تو کبھی تم سے کھل کر بات بھی نہیں کی۔ گھٹیا سوچ رکھنے والوں کو بات بڑھانے کے لیے رائے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں۔ محسن تھک کر ان کے قریب بیٹھا۔ ایسے کون سے پہاڑ کھڑے کر دیے میں نے؟ طیبہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی، بالکل بدلے ہوئے تیور کے ساتھ، نہ کوئی خوف نہ جھجک۔ کچھ دیکھا ہے، کچھ محسوس کیا ہے تو ہی بات کی ہے۔ امی اس سے کہہ دیں کہ یہاں سے چلی جائے، محسن نے دانت پیس کر کہا۔ جا رہی ہوں اس گھر سے، میں نے شادی جمال سے کی تھی، جب وہی یہاں نہیں تو یہاں رک کر آپ کے تانے سننے کا فائدہ؟ وہ کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ خس کم جہاں پاک، محسن نے کہہ کر ماں کو دیکھا۔ وہ گمسم بیٹھی تھیں۔ آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جمال بھائی سے بات کریں۔ نبیلہ نے ایک طویل سانس لے کر بیٹے کو دیکھا جو اس سچویشن پر بوکھلایا ہوا بھی تھا اور غصے میں بھی تھا۔ وہ بولی تو لہجہ خلاف معمول پرسکون تھا۔ میں ٹینشن نہیں لے رہی، میں جانتی ہوں مجھے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ طیبہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ جب تک بات لحاظ کے پردے میں چھپی تھی چل رہا تھا، اب فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ تم جاؤ آرام کرو، صبح آفس کے لیے نکلنا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ محسن نے تشویش سے ماں کو دیکھا۔ صوبان نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑی پرچی اٹھا کر دیکھی۔ ایک ذرا ہاتھ بڑھا میری طرف، خود کو میرا تو ہم سفر کر دے، تم میری زیست کا حاصل ہو، اتنا کہہ اور معتبر کر دے۔ زبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
वो उसे एक टीन एजर की जसारत समझकर नज़रअंदाज करने को था। इससे कबल के उसे डस्टबिन में फेंकता उसने दरवाजे में खड़ी अरीशा को देख लिया था, जिसके हाथ में 2 मग थे जिन पर सुर्ख स्ट्रॉबेरी बनी थी। ये अरीशा के फेवरेट मग थे। आओ अरीशा, उसने पर्ची साइड पर रख दी। कॉफ़ी? शुक्र है इस घर में किसी को तो कॉफ़ी बनाना आती है। सोबान ने हाथ बढ़ाकर मग पकड़ा और रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ गया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यूं ही मूड हो रहा था आपके साथ कॉफ़ी पीने बातें करने का। वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई जहाँ ढलती दोपहर की जर्दी बिखरी थी। आपका दोस्त कैसा है? कौन सा? वही जिसके लिए सुर्ख गुलाब लेकर गए थे। उसके लहजे में हल्की सी रकाबत दर आई। तुम सुर्ख गुलाबों से इतना एलर्जिक क्यों हो? सोबान मुस्कुराया। अब तो उसे भी इस आंख मचौली में मज़ा आने लगा। मैं क्यों फूलों से एलर्जिक होंगी? अरीशा ने कंधे उचकाए। तो फिर मेरी दोस्त से जेलस हो? मेरी दोस्त? अरीशा ने ठिठक कर उसे देखा। वो लड़की थी, मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो। आपकी लड़कियों से दोस्ती है? हाँ भाई, साथ पढ़ते हैं तो दोस्ती भी हो ही जाती है, सोबान ने लापरवाही से कहा। अरीशा कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसके हाथ से मग झपट लिया। अरे अरे, कॉफ़ी तो पीने दो। उसी के साथ पिए जिसके लिए फूल लेकर गए थे, अरीशा ने चबा चबा कर कहा और तेज़ी से निकल गई। इसे किस बात पर गुस्सा आ गया? हद हो गई, ये कोई बात थी खफा होने वाली? न जाने कब मैच्योर होगी। अरीशा तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। चारपाई पर बैठी हमीदा ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ अर्शी? ताई जान, ये सोबान है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। उसकी आंखें छलकने को बेताब थीं। क्या कह दिया मेरी बच्ची को? अभी बुलाकर पूछती हूँ, उन्होंने प्यार से कहते बाजू से पकड़कर करीब बिठा लिया। वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने थोड़ी जाता है, लड़कियों से दोस्ती करने जाता है, और वो बीमार हो जाए तो फूल लेकर अयादत के लिए अस्पताल पहुँच जाता है। तो तू क्यों परेशान हो रही है? वहाँ 10,000 लड़कियाँ हों, मेरी अर्शी जैसी तो एक भी नहीं होगी। ये बात वो क्यों नहीं कहता? आने दे नीचे, अभी उसके लत्ते लूँगी, लेके तुझे रुला दिया। आयशा अभी अभी स्कूल से लौटी थी, सीधी माँ के कमरे में आई, मगर दरवाजे में ठिठक कर रुक गई। आमना खातून के पास नौमान बैठा था। मौसूफ रोज़ ही चले आते हैं। नौमान ने उसे देखा तो आंखों में 440 वाल्ट का बल्ब रोशन हो गया, मगर वो दूसरे पल सर झुका चुका था। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आमना खातून मुस्कुरा दी। सलाम का जवाब देकर कहने लगी, आशी, खाना खाकर नौमान के लिए 1 कप चाय तो बना दो, मुझे तो इसने उठने नहीं दिया। नहीं खाला, चाय की ज़रूरत नहीं है। आयशा सर हिलाकर चादर और बैग कमरे में रखकर किचन में आ गई। खाना खाने के साथ साथ चाय भी बना ली। कप लेकर अंदर आई तो आमना खातून बेहद संजीदगी से कह रही थी, एक ही हसरत है मेरी, आशी का रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूं। पता नहीं क्या बात है, कहीं बात आगे बढ़ती नहीं। आशी को देखते ही वो फ़ौरन खामोश हो गई। आशी ने बड़े ज़ब्त से कप नौमान को थमाया और कमरे में आ गई। वो फरीद और अकरम, नौमान ने उनके बेटों के बारे में पूछना चाहा। अल्लाह का शुक्र है, फरीद तो पिछले साल दुबई चला गया था। अकरम अभी FSC कर रहा है, बहावल नगर अपने मामू के पास रहता है। मेरे भाई की औलाद नहीं थी, बचपन से उसे गोद ले लिया था। कहता है यहाँ कोई नहीं है, वापस आ जाऊँगा, मगर उसके अब्बू ने मना कर दिया। वहाँ उसका मामू भी तो तन्हा है, हमारे पास तो आशी है। हमारा इरादा तो यही है कि आशी की शादी के बाद वहीं बहावल नगर चले जाएं। आशी के अब्बू की रिटायरमेंट भी करीब है, इस किराए के घर से भी जान छूटेगी। आमना खातून को भी बड़े अरसे के बाद कोई सामे मिला था, सो नौमान बहुत जल्द उनके घर के तमाम हालात से बाखूबी वाकिफ़ हो गया था। अच्छा खाला, अब इजाज़त दें, कोई काम हुआ तो मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। आमना खातून उसे दुआएं देने लगी। उसके जाने के बाद आशी शेर की तरह कमरे में आई। अम्मी, आप भी हद करती हैं, क्या ज़रूरत थी एक अजनबी शख्स के सामने मेरे रिश्ते की बात करने की? आमना खातून ने देखा उसका चेहरा गुस्से और खजालत से सुर्ख हो रहा था। मुझे किस कदर इंसल्ट फील हुई। मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मुझे कोई पूछने ही नहीं आ रहा। हज़ारों लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, तो वो क्या जिंदा नहीं रहती? हर आए गए के सामने यही जिक्र। अब थकती नहीं मेरी बेइज्जती करवाते करवाते। आयशा, तू कितनी तल्ख होने लगी है। उन्होंने हैरत और दुख से उसे देखा। आयशा को अपने लहजे की तेज़ी का एहसास हुआ तो जैसे थक कर उनके करीब बैठ गई। जानती हूँ मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की हूँ, मेरा बाप कोई बड़ा जहेज़ भी नहीं दे सकता, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी पर बोझ तो नहीं, अपना कमाती अपना खाती हूँ, अल्लाह ने किसी का मोहताज तो नहीं किया। आशी, मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, घराना भी हमारे जैसा है, और मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करता है। आशी ने हैरत से माँ की शक्ल देखी। चौक में खड़ी करके नीलामी लगा दें, जिसका जी चाहे ले जाए। वो एक झटके से उठकर चली गई। आमना खातून शशदर सी उसे देखती रह गई। ये तू नहीं, वक्त की तलखियाँ बोल रही हैं मेरी बच्ची। उन्होंने आंखों पर दुपट्टा रख लिया था।
पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग बोझल होने लगा। उसने गर्दन मोड़कर माँ को देखा। सारे दिन की थकी हारी सो रही थी। वो चाय बनाने के इरादे से किचन में आ गया। शुक्र था किचन में सिलेंडर मौजूद था, वरना वो कहाँ आग सुलगाता। चाय बनाकर प्याली में डाल रहा था जब कुबरा चली आई। अच्छा तू है, मैं समझी बिल्ली है। चाची बड़ी खबरदार नींद है तेरी, वो हंसा। ख्याल था वो अभी कोई ना कोई ताना मारेगी। अच्छा दूध अच्छी तरह ढक के और दरवाज़ा बंद करके जाना। वो जमाई लेती चली गई। हैरत है, आज तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। वो प्याली उठाकर अंदर आ गया। चारपाई पर बैठा तो वो चिड़चिड़ाने लगी। जमीला ने चौंक कर आंखें खोली। क्या हुआ बिल्लू? कुछ नहीं अम्मा। अब सो जा बिल्लू, सारी रात पढ़ता रहेगा। अम्मा पर्चे हो रहे हैं, वैसे भी मेरे इस जागने पर मेरे मुस्तकबिल का इन्हसार है। अल्लाह तुझे सारी कामयाबियाँ दे, तेरी राहें आसान करे। वो दुआएं देते देते सो गई। इब्रार ने उसके सोए हुए चेहरे को प्यार से देखा। माँ, सफ़र तो तुमने किया है, लेकिन अब थोड़ा ही अरसा है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मुशक्क़त ख़त्म होने को है। उसने चाय का घूंट भरा और किताबें खोल लीं।